हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट्स को। तो आज के सेशन में सीखने वाले हैं हम हाउ टू लर्न हाउ टू कॉम्प्रीहेंड पैराग्राफ, राइट। सो गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से आप सभी मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाइए। दिस इज आंचल सिंह। आई एम गोइंग टू टेक योर सेशन ऑन लर्न हाउ टू कॉम्प्रीहेंड अ पैराग्राफ एंड वी आर हियर ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल, राइट। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें, राइट। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे लर्न हाउ टू कॉम्प्रीहेंड अ पैराग्राफ। एज वी ऑल नो, राइट, एज वी ऑल नो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, para completion, para fillers, as well as close test plays a very important role in any of the examinations we give, right? Whether it be your banking exam, whether it be your bank exams, whether it be your SSC exams, whether it be your any sort of exams which you are appearing for. Okay, so these are some very important topics of English, right? Very important topics of English, and they all belong to one category, which is paragraph. And we all know that paragraphs are always written by somebody. There is a writer to a paragraph, right? And when I say comprehend, what do I mean? You need to comprehend, you need to understand. By reading, you need to understand what the writer is saying to you, right? By reading a paragraph, by finishing a by para fillers, or by close test, definitely we get only few blanks, like 5 to 10 blanks in closed test, and we have to just use the best appropriate option over there. But still, understanding the tone of the paragraph, understanding the tenses of the paragraph is again very important part, and also understanding what the author is trying to convey, whether it is in a negative form, whether it is in a positive form. That is again one very important thing, right? Similarly, by comprehending, I mean you need to understand what the writer has written, why has he written so, and what is the purpose of writing so and so. This is when you start questioning these things. This is when you understand, and when you try to express in form of questions, in form of filling the blanks, in form of para completion, like sentence completion. Okay, this is when you understand. This is how you comprehend. When you start understanding what the passage is saying, what the writer is trying to convey, what the writer has expressed with this piece of article, right? So आज हम जानेंगे how to comprehend. There are certain techniques, there are certain points you need to keep in mind while you're reading, okay, and this will definitely enhance your reading skills, comprehension skills, as well as you will start understanding in a more better form. Okay, so let's begin with the session. Sabse pehle you have to go to an academy app, and you have to follow me for all the free classes, all the special classes which we do, right? You have to type my name, ANCHALSINGH, and if you want to buy any subscription, you can use my code, which is AN Live. How are you going to use this code? For example, you are a bank aspirant, right, and you want to go for a 12 months plan. The fees for 12 months plan is 6,000. The moment you will apply my code AN Live over here, you get a discount of rupees 600, which is 10% off 6,000. So by using my code, you get 10% instant discount, which is 600 of 6,000, and your fees becomes 5,400, and then you can proceed to pay, right? Let's discuss a few more things. 6:30 to 7 a.m. every day we join. You join me at Wi-Fi Study Studios, right? This is my schedule. You can go through the schedule and you can come and join me. 10 a.m. to 11 a.m. we meet each other every day at plus classes. 11:30 a.m. to 1:30 p.m. we see each other at an academy special class, which is free. Plus class is For plus class you need subscription, right? For plus class you need subscription, but for unacademy special class you need no subscription, you need nothing. All you need is your presence, your dedication, and your regularity. So these special classes are
totally free. 2 p.m. to 3 p.m. we see each other every day at Wi-Fi Study Bank exam, and this was from Monday to Friday, right? Also from Monday to Friday, in between Monday to Friday, on Thursday and Friday, Thursday and Friday, you can follow me on Just English channel where we discuss, where I, your vocab guru, discusses with you a lot of vocabularies, a lot of questions which have come in your examination. So I would request each one of you to come and join me there as well. Okay? So this was the schedule. आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर और देखते हैं सबसे पहले हमें क्या किन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है मेन पॉइंट का। मेन पॉइंट क्या है? रीड द पैराग्राफ ओवर क्विकली। सबसे पहले पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है? बट जो भी मेन पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखिए। अगर कहीं फर्स्टली, सेकेंडली, अगर कहीं कोई बोल्ड वर्ड दिया हुआ है, ये सारे मेन पॉइंटर्स होने चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, शुरुआत के सेंटेंसेस क्या है, एंडिंग सेंटेंसेस क्या है, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। खुद से पूछिए, आपने जब पढ़ा तो आपको क्या लगा, मेन पॉइंट क्या है। मतलब हमें रीड तो करना है जल्दी, बट ऐसा रीड नहीं करना है कि हम मिस आउट कर जाए कोई चीज़, ठीक है? हमें पॉइंटर्स ध्यान में रखते हुए करना है। To determine whether you have made an accurate assessment of the main point, look for material supporting the main point. Now, when you will start thinking, you will start recalling what have you read and what were the main points. So जब आप recall करना शुरू करोगे तो दोबारा से आप मैच कर सकते हो जाके पैराग्राफ से कि मेन पॉइंट्स क्या थे और आपने अपने असेसमेंट को पूरा किया या नहीं किया। For example, if the main point of a paragraph is that Boston Celtics are poised to win the next NBA championship, ठीक है? Then supporting material might include the statistics of the key players, the position of the Eastern Conference, the position of the league overall. Often the main point is the sentence of the paragraph. I told you the first sentence ध्यान में रखना है, first sentence को ध्यान में रखना है, concluding sentences को ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी bold words दिए हुए हैं, जहाँ पे भी लोगों के नाम दिए हुए हैं, या फिर फर्स्टली सेकेंडली करके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ किस तरीके के हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ पैराग्राफ एड्स इन कॉम्प्रीहेंशन एंड टेस्ट टेकिंग। मतलब आप कॉम्प्रीहेंड करने में आसान होगा और टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कॉमन पैराग्राफ टाइप्स आर नरेटिंग। बेसिकली जो पैराग्राफ्स आते हैं वो कैसे होते हैं? नरेटिंग होते हैं, डिस्क्राइबिंग होते हैं, एक्सप्लेनिंग, किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट कर रहे होते हैं, क्लासिफाई कर रहे होते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं। बेसिकली आपको कॉमन पैराग्राफ्स इसी तरह के आएंगे जब भी आप कोई भी एग्जाम दोगे। ओके? गैदर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच टाइप। हर तरीके की अंडरस्टैंडिंग गैदर कीजिए। जब कोई नरेट कर रहा है तो कैसे नरेशन हो रहा है, क्या नरेट किया जा रहा है, डिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं सो you have to understand the article definitely, but you also need to learn that what is the process, how is the process going on. Okay? It will give you an understanding thinking, and this will also help you in descriptive paper. Then explaining with examples, किन examples के साथ explain किया जा रहा है। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट का पॉइंटर्स क्या है ये ध्यान देना है, ठीक है? क्लासिफाई किन बेसिस पे किया जा रहा है, किन फैक्ट्स पे किया जा रहा है, और डिफाइन कर रहे हैं तो क्या क्या डिफाइन किया जा रहा है, राइट? Such an understanding is especially important with question that ask the author's purpose in the paragraph. और ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी ऑथर का पर्पस पैराग्राफ में पूछा जाए, यू शुड हैव क्लैरिटी कि ऑथर ने पैराग्राफ में किस पर्पस से ऑथर ने पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड किया है या लिखा है। ये कॉम्प्रीहेंशन दे ऑल्सो एड इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। ओवरऑल समझने में पैसेज को ये आपकी हेल्प करेंगे, राइट? नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ पैराग्राफ, देन कीप क्वेश्चंस इन माइंड। अब आप एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हम दो अप्रोच फॉलो करते हैं। एक होता है पीक्यू अप्रोच, एक होता है क्यूपी अप्रोच। तो जो पीक्यू अप्रोच होता है वो होता है पैराग्राफ रीड कीजिए और फिर क्वेश्चन रीड कीजिए। क्यूपी अप्रोच होता है पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए फिर पैराग्राफ रीड कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेशंस में हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आई सजेस्ट आप दोनों ही अप्रोचेस फॉलो कीजिए, ठीक है? कैसे करेंगे ये मैंने ऑलरेडी आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेशन में बताया है, मैं फिर आपको बता दूंगी डेफिनेटली जब हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, राइट? इफ आंसरिंग क्वेश्चन फॉर अ टेस्ट, अगर आप किसी टेस्ट के लिए क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, पहले तो अपने क्वेश्चंस को रिव्यू कर लीजिए, एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चंस माइट आस्क फॉर अ समरी, हो सकता है क्वेश्चन में समरी पूछा गया हो। की आंसर टू द की टू द आंसर इज इन द मेन पॉइंट, तो समरी क्या होगा? मेन पॉइंट हो जाएगा। अदर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? स्पेसिफिक डिटेल पूछा जाता है।
आंसर्स में हो सकता है मेन पॉइंट के साथ कहीं ना कहीं वो डिटेल्स दिए हों। कंटेक्स्ट एंड मीनिंगफुल क्वेश्चंस, वोकैबुलरीज पूछी जाती है, मीनिंग ऑफ द वोकैबुलरीज या फिर मीनिंग ऑफ द फ्रेज, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो कंटेक्चुअल क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछे जा रहे हैं। अबाउट द स्पेसिफिक यूज ऑफ अ वर्ड विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के विद इन पूछा जा रहा है। यू मस्ट रिलाई ऑन योर नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स, राइट। यहाँ पे आपको मैंने जैसा बोला वोकैबुलरी, यहाँ पे वोकैबुलरी बहुत काम आने वाली है आपको। सो आपको वोकैब गुरु से वोकैबुलरी जरूर सीखनी चाहिए और सिनोनिम्स एनहांस करना चाहिए। तो आपके सिनोनिम्स की नॉलेज यहाँ पे बहुत जरूर काम आएगी। प्लस इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंस का मतलब कंक्लूड करना, ठीक है। इन्फ्रेंस क्वेश्चन आर द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। इन्फ्रेंस क्वेश्चन इसलिए अल्टीमेट टेस्ट है क्योंकि आपको अपनी समझ से, अपनी लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको ये आंसर देना होता है, राइट। कि आपने पैराग्राफ में क्या पढ़ा, आपने कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ा, एंड देन यू हैव टू फाइनली आंसर। As they ask you to draw a conclusion based on your reading, to succeed, you must stay within the bounds of the passage and avoid speculations in your answer. So आपको सही आंसर करने के लिए विद इन द बाउंड्स मतलब पैसेज के अंदर तक ही सोचना है, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है, अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है। अवॉइड स्पेक्यूलेशन इन योर आंसर, बहुत ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं देना है। हमेशा याद रखना है द आंसर शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर हु हैज रिटन द पैराग्राफ। ओके, सो बेसिकली जब आप कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड करते हो, किन चीजों की हेल्प चाहिए आपको? सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एनालिटिकल एबिलिटी, एनालाइज करने की एबिलिटी, है ना। लॉजिकल एबिलिटी, इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो लॉजिकली हम कनेक्ट कैसे करें, आंसर कैसे करें, बाय कनेक्टिंग द पैराग्राफ, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी, इफ दिस विल बी द आंसर देन व्हाई इट विल बी द आंसर, यू शुड नो द रीजन एज वेल, ओके। इन्फ्रेंस पावर यानी कि इन्फ्रेंस कैपेसिटी आपकी कितनी जल्दी और कितनी बेहतर और कितना सही आप इन्फर कर पाते हैं। स्पीड होनी चाहिए रीडिंग में डेफिनेटली, और वोकैब्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकैब्स आप थोड़े वोकैब्स प्रैक्टिस करो, वोकैब्स अच्छी होगी तो आपके 2-3 मार्क्स ऐसे ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ले जाएंगे। ओके ओके, देयर इज अ फंडा, देयर इज अ मैजिकल थिंग कॉल्ड 3S। अब ये रीडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये सारी चीजें करे कैसे? बोलना तो बहुत आसान है लेकिन की कैसे जाए? तो ये हर दिन की प्रैक्टिस से होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। इसे मैं कहती हूँ मैजिकल 3S। अब ये मैजिकल 3S क्या है? नंबर 1, समराइजेशन स्किल बिल्डिंग प्रोसेस। Now what is summarization skill building process? जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई पैराग्राफ, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल, एनीथिंग, हैव योर ओन ओपिनियन, प्लीज स्टार्ट समराइजिंग दैट विल enhance your skill building, that will enhance your summarization skill building, right? आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, टेक योर 10 minutes time and write it down, what have you summarized, what have you understood, what you have read। क्योंकि हमें डिक्टेशन तो अच्छी नहीं करनी है ना, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे, हमें अपनी एबिलिटी अच्छी करनी है, हमें अपनी स्किल्स को और पॉलिश करना है। सो यू नीड टू डू दिस। सेकेंड, समराइजेशन स्किल बिल्डिंग प्रोसेस के बाद आता है स्पीड रीडिंग कॉन्सेप्ट। स्पीड रीडिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको जल्दी पढ़ना है, मतलब टाइम कम लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम पढ़ सकें। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्किप कर करके पढ़ना है ना। प्रॉपरली वो हर वर्ड को पढ़ते हुए जाना है, हर पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए जाना है, हर एक को ध्यान देना है। लाइक यू शुड हैव एन ईगल्स आई when you are reading a reading comprehension or you are reading any paragraph, any comprehension, for that sake, okay। So reading, speed reading concept, right? अगर आप डे वन आप स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन रीड करना, ठीक है, और डे वन में आपको कॉम्प्रिहेंशन रीड करना पड़ रहा है और आपको लग रहे हैं 45 मिनट्स, इफ आई से एक कॉम्प्रिहेंशन, एक कोई पैराग्राफ रीड करने में, देन डे टू में डे थ्री, डे फोर, मान लिया 45, 46, 50 ऐसे टाइम आपको लग रहा है। बट बाय द टाइम यू कम टू डे 10, this time this time should decrease to at least 32 minutes, not 30 minutes exactly but yes 32 minutes। कम से कम ये डे 10 में आपका 32 मिनट्स होना चाहिए।
तो जब भी आप पढ़ रहे हो, कीप अ कॉपी, कीप अ टेबल विथ यू एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन योर टाइम एज वेल, that how much time are you taking and investing while answering these questions. Okay, then the third part is selective reading habit. ये है हमारे 3 S, ये है मैजिकल 3S। अगर ये कर डाला तो लाइफ फुल ऑन जिंगल आला, राइट। फुल ऑन आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर ले जाओगे। अब सिलेक्टिव रीडिंग हैबिट बोलने का मतलब यहाँ ये है, मैम ने बोल दिया जाके रीड करना है, जाके पढ़ना है। अब क्या पढ़ रहे हैं भाई, जाके बॉलीवुड तड़का पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, वोग पढ़ रहे हैं, है ना। और जाके ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत एंटरटेनिंग है। बट ऐसी चीजें नहीं पढ़नी है। लेट मी मेक टेल यू, ऐसी चीजें नहीं पढ़नी है। रीडिंग करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी इंग्लिश में मिले वो पढ़ लिया जाए, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपकी एबिलिटी को इनहांस करे। आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का ओपिनियंस वाला पेज, आर्टिकल्स वाला पेज, ये सारा कुछ पढ़िए। करंट अफेयर्स पढ़िए, पूरे न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं, पूरे न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। बट स्टार्ट रीडिंग, ओके, स्टार्ट रीडिंग एंड हैव अ सिलेक्टिव रीडिंग हैबिट कि मुझे यही पढ़ना है, इसी सेक्शन से पढ़ना है, इसके बाहर मुझे डाइवर्ट नहीं होना है। क्लियर। जाके कोई एंटरटेनिंग सा तड़का, बॉलीवुड तड़का मसाला या किसी एक्टर एक्ट्रेस की न्यूज नहीं पढ़नी है जिससे आपको कोई फायदा ना हो एग्जाम में। ओके, so you have to build up this selective reading habit skill as well. Okay, I would like to give you one suggestion that every time you read something, do not ignore an unknown word. Okay, whenever you read something, see whatever I am telling you today, that how to enhance your reading, how to enhance your comprehending ability, I'm telling from the basic point of view of reading comprehension, para completion, para fillers and close test, definitely, right. But what happens when we practice, and this I'm not telling because you will definitely go in the exam and do this. एग्जाम में करने के लिए ये नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस सेशंस के लिए है। यू हैव टू डू दिस व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड एंड देन एनहांस योर एबिलिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखोगे, योर माइंड इज अ रिफ्लेक्शन, your writing will be a reflection of your mind, right? Whatever you will write, it will be a reflection of your thoughts, of your opinions. So you have to develop your thoughts and opinion. Without that, you will definitely not be able to answer. So I'll suggest you start doing that, start practicing. And when you practice, take your time. You have ample time. Take your time and then practice one by one, one by one, one by one. Because this is how you will be able to build up your abilities, enhance your skills, and polish your skills while practicing. So whenever you're practicing at home, if you get any unknown word, right? How will you improve your vocabulary? Vocabulary will be improved when you will practice unknown words, right? Unknown words has to be practiced. You need to go and see the synonyms of it, you need to go and see the meaning of it, you need to go and see the antonyms of it, ठीक है। अब देख लेना तो काफी नहीं है, बिकॉज ये तो याद रहने वाला नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करें, मान लीजिए कोई भी ऐसा वर्ड आ गया जो आपकी समझ से बाहर है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, जब आपने उसकी मीनिंग देख लिया, एंटोनिम्स देख लिया, सिनोनिम्स देख लिया, आप सेंटेंस के साथ रिलेट कर पा रहे हो। बट अब उसको रिटेन कैसे करें, अब उसको याद कैसे करें। कोई अपने लाइफ से रिलेटेड किसी ऐसे इंसिडेंट को रिलेट कर लीजिए, अपनी किसी लाइफ से रिलेटेड किसी ऐसे पर्सन को रिलेट कर लीजिए उस वर्ड से, जो हमेशा याद रहे आपको, है ना। So try to get personal with these words. When you start getting personal with the words, vocabulary especially, you start remembering and recalling the vocabularies. It becomes very easy to understand that okay, these are very helpful things. Okay, so do not ignore an unknown word. To find its meaning immediately, go and find its meaning immediately whenever you are practicing whatever you are practicing. Okay, and this is a practice session. While practicing you are doing all this, so you have all the rights to go and do whatever and explore everything. Okay, this will help you learn a lot of new words, but don't forget to use them in your day to day conversations. Yes, try to use them in your day to day conversation whenever possible. In this way, keep working on your vocabularies without stopping. Okay, chaliye. And I would like to tell you one more thing. Classify the following words in positive, negative and neutral tone. बहुत बार टोन पूछी जाती है ना, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, राइट। तो जब टोन ऑफ द ऑथर पूछा जाए, जब भी टोन ऑफ द ऑथर पूछा जाए, तो आप कैसे आंसर करेंगे, हाउ विल यू आंसर द टोन ऑफ द ऑथर। वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव जैसे वर्ड्स तो होंगे नहीं,
वहां पे होंगे fortunately, unbiased, respected, detached, ironic, luckily, a matter of fact, ridiculous, amazingly enough, optimistic, reverent, candid, pessimistic. So what kind of questions, what kind of tone will be your answer? How will you bifurcate between these positive, negative and neutral tone? So when you're talking fortunately, if I say fortunately, it's definitely a positive word. Unbiased, अनबायस्ड, बायस्ड होना मतलब गलत है, बट अनबायस्ड होना गलत है क्या? नहीं है. दैट मीन्स ये हम न्यूट्रल में डाल सकते हैं, बिकॉज बायस लग गया तो पॉजिटिव डेफिनेटली नहीं है, बट अनबायस्ड है तो न्यूट्रल है. रिस्पेक्टेड, पॉजिटिव. डिटैच्ड, नेगेटिव. आयरॉनिक, न्यूट्रल. राइट. बोला कुछ और जाता है, मीनिंग कुछ और होती है. लकीली, पॉजिटिव. अ मैटर ऑफ फैक्ट, न्यूट्रल टोन. रिडिक्यूलस, बहुत ही रिडिक्यूलस, राइट, नेगेटिव. अमेजिंगली इनफ, डेफिनेटली पॉजिटिव. ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव. रेवरेंट, रेवरेंट क्या हो जाएगा? रेवरेंट विल बी न्यूट्रल. कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है? फ्रैंक, ओपन, राइट. अगेन इट विल बी न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. बट पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव. दैट मीन्स अगेन नेगेटिव विल बी द tone. So this is how we'll bifurcate between your positive, negative and neutral tone, whatever your author is trying to, whatever your writer is trying to convey. Okay. I hope you have learned from this session, and you can follow me on Unacademy by typing my name ANCHULSINGH. And if you want to buy a subscription, you can use my code ANLIFE. I come up with these sessions, a lot of such kind of sessions, to make you better, to enhance your abilities. And I hope this session will also be helpful. So do like the session and do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for joining me over here. See you tomorrow. Take care. Goodbye.